So, good morning, students. So, in today's lecture, we'll be continuing with the pandas, and in today's session, we are going to cover few of the introductory topics of the pandas. Then, followed with we'll discuss the correlation of the pandas, how we can see the correlation between the two random variables by using the pandas. So, before doing that, I'll explain you some theoretical part related to the correlation also, and after that we will see how to plot the pandas. Fine, so we have two columns, we have two kind of series. Then we will see how to plot the graph, or we can say that the picture for that, the regarding the variables. Fine, so let's begin with. So first of all, we will discuss how to uh, so in today's lecture we are going to discuss, we are going to discuss cleaning the data of wrong format. So previously, in the previous lectures, we have seen the missing values. So how to rectify the missing values. So in this lecture, we are going to discuss the values are present, but the wrong values are interpreted. Like for an example, uh, like for an example, instead of 1.79, I have written 178. So in that column, the in that particular row, or we can say that a particular column, the value is present, but the wrong value is there. Fine. So we have to how we have to rectify, how we can rectify such kind of problems by using pandas. So let's see. So cells with the data of the wrong format can make it difficult or even impossible to analyze the data. Fine. To fix it, we have two options. Either we remove the row or convert all the cells in the column into the same format. So we have two kind of things. We have two kind of options. So first we can delete the entire row, or we can replace it with the correct problem. Fine. So before begin with, again I have to, because this is again I have uploaded this Colab page, this IPNY file. So every time when you log in and when you open the Colab, this notebook, new notebook, every time you have to upload the data file, so .csv file. So in this lecture also I have to again upload the data file, that .csv file. So how we have to upload the data set, we again I'll just show you. So first of all, I have write from google dot colab, sorry, it is from import files. So what I have done, I am importing the files from the google.colab library. Fine. Now I am using one variable which is known as loaded equals to files dot upload. So what I am doing here is I am initializing it with the variable uploaded, and I'm using the method upload, fine, which is present in the file library. So after executing this, one window will be pop up. From there I have to click on the browse, and the window will pop up. Fine. So in this windows, again I'll upload the file which is data.csv, the old file. I've already shared you the .csv files in your Google Classroom. Fine. So you can go and check it out for a ready reference. You can use that in your practice. Fine. So now it is uploading now, and it is 100% done. So now I have uploaded the file. Now I have, what I have to do, I have to create one variable which is known as data frame.
then pd dot read underscore csv. This is the method read.csv which is present in pd. Fine, sir, but before that I have to import again. I have to import pandas, import pandas as pd, and here I have to write the file name data dot csv. Fine, now I can see the head. I told you head will by default shows the first 5 rows, and tail will show you by default the last 5 rows. But if I want more than 5 rows, then I can write it as 10. Now let's suppose I want to see first 10 entries, first 10 records of the df. Now let's see. Here we can see that the duration, pulse, max pulse, and the calorie. Fine. So I think I have to, here date is not there, so I have to again upload another file which is my dirty data.csv. So again I'll go to the downloads option, and here I will upload another file which is my dirty data.csv. It's done now, and now here I have to change the file name from data.csv to dirty data.csv. And now let's see the first 10 entries. Fine, so here we can see the first 10 entries, and here we can see that the duration is of 60, 60, 60 and 30, and here the duration is 450. So this the entry at 7th row is quite wrong. ठीक है, तो ये wrong हो सकती है. तो अब अपने को क्या करना है, sorry, 450 is fine. I have to see first 30 entries. So here I can see the first 30 entries, and here you see that in the date column, date में क्या है, NN लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे जो डेट लिखी हुई है उसको NN लिखा हुआ है, और जो 26th एंट्री है उस 26th एंट्री में ये डेट जो है ये अलग तरीके से लिखी हुई है. सो दीज आर द टू रॉन्ग वैल्यू विच आर इनप्लेस्ड इन दिस डेटा सेट. तो अब अपने को ये रेक्टिफाई करना है. ठीक है, तो पहले अपन क्या कर सकते हैं कि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेट कॉलम को इनटू डेट्स. ठीक है, डेट कॉलम को डेट्स में कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड होता है विच इज़ नोन एज टू अंडरस्कोर डेट टाइम. तो उसको करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे df, देन यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिस्ट, मेरे को ओपन करनी पड़ेगी. अब मुझे कौन सी सीरीज लेनी है, डेट सीरीज लेनी है मेरे को. अब डेट जो लिखी हुई है वो स्ट्रिंग में लिखी हुई है, तो बट ऑब्वियस है कि मेरे को इसे डबल कोट में लेना पड़ेगा, और जैसे कि डेट सीरीज लिखी हुई है उसी तरीके से लिखना पड़ेगा, केस सेंसिटिव होती है. और फिर मेरे को यहाँ पे लिखना है, अब मुझे जो है ये जो डेट है इसको सही फॉर्मेट में लिखना है. तो इसके लिए एक पीडी के अंदर एक मेथड होता है विच इज़ नोन एज टू अंडरस्कोर डेट टाइम. फाइन, तो इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे किस में डेट टाइम कन्वर्ट करना है, df डेट के अंदर. ठीक है, और उसके बाद मैं दोबारा df डॉट हेड करूँगा, और हेड करने के बाद मैं पहली 20 एंट्रीज देख लेता हूँ, और पहली 30 एंट्रीज.
तो मुझे उसका आउटपुट दिख जाएगा। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि जो आप देख रहे हैं 26th रो के अंदर जो डेट है वो डेट फॉर्मेट में नहीं लिखी हुई है। डेट फॉर्मेट इस तरीके से होता है जिसमें स्लैश यूज़ करते हैं। तो हो सकता है बाय मिस्टेक कई बार क्या होता है कि जब हम एंट्रीज लेते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि ये सारा डेटा क्रिएट किया जाता है। तो इसका कोई डेटा क्रिएटर होता होगा, कोई इसकी एंट्रीज करता होगा, तो बाय मिस्टेक और थोड़ी जल्दबाजी में हो सकता है कि जो डेट्स के जो वाकई जो इसका एक फॉर्मेट होता है एक्सेल के अंदर .csv फाइल के अंदर, अगर वो उसमें नहीं होती है तो वो गलत शो करने लग जाता है। तो मैंने सीधे CSV फाइल अपलोड करी तो मैंने सबसे पहले देखा कि इसके अंदर जो फॉर्मेट है वो सही है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पाया कि 26th रो के अंदर जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल अलग लिखा हुआ है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डेट टाइम फॉर्मेट में यूज़ करना पड़ेगा। तो PD के अंदर एक फैसिलिटी होती है, एक मेथड होता है विच इज़ नोन एट टू डेट टाइम। So it is used to convert the wrong data into date time format. फाइन। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे DF लेना है। मैंने DF क्यों लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो डेटा फ्रेम बनाया है जिसमें मैं ये CSV फाइल को सेव कर रहा हूँ उसका नाम है DF। तो अब मैं जो भी चीज़ लेने जा रहा हूँ, जो भी चीज़ को या जो भी मेथड को मैं लूँगा तो वो DF से ही लूँगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ DF.head लिखा था मैंने। अब इसके अंदर अगर मेरे को कोई सीरीज एक्सेस करनी है तो सीरीज का मतलब होता है द कॉलम्स। अगर मेरे को यहाँ पे ड्यूरेशन को एक्सेस करना होगा तो मैं ड्यूरेशन लिखूंगा। अगर मुझे यहाँ पे डेट एक्सेस करनी होगी तो डेट लिखूंगा। पल्स एक्सेस करना होगा तो पल्स लिखूंगा एंड सो ऑन। तो मुझे यहाँ पे डेट को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे DF बिग ब्रैकेट लिख के और कोट लगा के डेट लिखूंगा इक्वल्स टू PD.to_date टाइम। तो PD के अंदर एक मेथड होता है विच इज़ नोन एज टू डेट टाइम। और मुझे किसके अंदर चेंज करना है, उसके अंदर मैं पैरामीटर्स पास कर दूंगा। तो डेट टाइम एक मेथड है, एक फंक्शन है, तो इसके अंदर हम एक पैरामीटर्स पास कर देंगे। पाइथन में हमने पढ़ा ही था। तो इस तरीके से हम जो है आर्ग्यूमेंट उसको पास कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे लिखना है DF और डेट डाल देना है और उसके बाद मुझे क्या करना है DF.head 30। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट। सो हियर वी कैन सी दैट यहाँ पे जो 26 था वो सही हो गया है। और अभी इससे पहले जो फॉर्मेट था वो इस तरीके से था और ये स्ट्रिंग फॉर्म में था। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको स्ट्रिंग फॉर्म में लिखा हुआ था। तो मैंने पूरे के पूरे सीरीज को, इस कॉलम को चेंज कर दिया और अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही और एकदम क्लीन डेट्स मेरे को देखने को मिल रही है और फॉर्मेट में देखने को मिल रही है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 22nd जो कॉलम है उसमें NAT लिखा हुआ है, मतलब जो ये जो नॉट फिट है डेटा। अब इसको करने के लिए हमें किस तरीके से करना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। तो ये जो NAT लिखा हुआ है इट इज़ नॉट अ टाइम। फाइन। तो नॉट अ टाइम जो लिखा हुआ है उसको हम किस तरीके से डील कर सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि हम इसको रिमूव ही कर दें। तो रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, DF डॉट ड्रॉप NA। आपको पता ही है ड्रॉप NA हम यूज़ करते हैं फॉर ड्रॉपिंग एनी काइंड ऑफ रो। ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्रॉप NA कर दिया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे सबसेट। सबसेट मतलब कि कौन सा कॉलम लेना है मेरे को, कौन सी सीरीज लेनी है। और यहाँ पे मैंने सबसेट ले लिया इक्वल्स टू, अब मुझे कौन सा लेना है यहाँ पे डेट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेट। ठीक है, और मुझे ओरिजिनल डेटा में ही चेंज करना है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू से क्या हो जाएगा कि जो ओरिजिनल डेटा सेट है उसी के अंदर वो चेंज हो जाएगा और वो ड्रॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उस जो पर्टिकुलर एक रो है उसको रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसकी यहाँ पे शेप देखूं, लेट सपोज इसके अंदर अगर अपन देखें DF डॉट इन्फो, अगर हम देखें तो हमें इन्फो देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। तो
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 32 इसके ये हैं और डेट टाइम 64, NS 1 है 64 और इंट 64, ठीक है। मेमोरी साइज इतना है। तो इस तरीके से हम सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 32 एंट्रीज हैं इसके अंदर 0 से लेके 31 तक, ठीक है। तो अगर इसमें से अगर एक रो को मैं रिमूव भी कर दूंगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो नाउ अगेन आई हैव टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, इट विल शोइंग एन एरर। ओके, यहाँ पे एल एक गलती से टाइप हो गया। तो नाउ लेट्स सी, तो ये चल गया है। तो नाउ लेट्स सी DF को हम देख लेते हैं। तो हमें देखने को मिल गया कि यहाँ पे 31 एंट्रीज हैं और 31 एंट्रीज के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें NAT आ रहा था, NAT आ रहा था 22nd एंट्री में। तो 22nd एंट्री जो है यहाँ से ड्रॉप हो चुकी है। अब 21 एंट्री है, उसके बाद सीधे 23 ही एंट्री है। तो इस तरीके से हम कोई भी अगर मान लीजिए रॉन्ग वैल्यू है या रॉन्ग फॉर्मेट में अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है, डेट टाइम वाली फॉर्मेट में नहीं लिखी हुई है, तो हम उसको कर सकते हैं। जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स के डेट और टाइम में ही प्रॉब्लम आती है। तो डेट टाइम जो फॉर्मेट होता है या तो वो स्ट्रिंग में लिखा हुआ होता है या फिर वो NAT होता है या फिर गलत तरीके से लिखा हुआ होता है। तो दोनों ही केस में अपन इस तरीके से उसको सही कर सकते हैं। नाउ वी विल लुक अपॉन टू द रॉन्ग डेटा एंट्रीज। तो रॉन्ग डेटा मैंने आपको बताया था कि रॉन्ग डेटा का मतलब ये नहीं है कि सेल एम्प्टी है या गलत फॉर्मेट में है। रॉन्ग डेटा का मतलब है कि रॉन्ग डेटा वो हो चुका है, ठीक है। तो रॉन्ग डेटा मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ का टॉपिक लिख देता हूँ, फिक्सिंग रॉन्ग डेटा। तो रॉन्ग डेटा में बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था जैसे मान लीजिए 1.6 है होना था, मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया, ठीक है। तो सेल एम्प्टी नहीं है, ना ही वो गलत फॉर्मेट में है, लेकिन वो उसकी एंट्री गलत हो चुकी है। तो वो अपने को चीज़ देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताया था, फिर से मैं प्रीवियस एग्जांपल बता देता हूँ आपको। DF डॉट हेड 10, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ़ यू टेक अ लुक, जो हमारा 7th एंट्री है उसके अंदर 450 लिखा हुआ है, लेकिन जो ज़्यादातर जो ड्यूरेशंस लिखे हुए हैं वो 60 और 30 के बीच में लिखे हुए हैं। तो ये बिल्कुल एक तरह का 450 का आउटलायर हो गया। आउटलायर मतलब क्या होता है, दिस इज एन आउटलायर बिकॉज आउटलायर क्या है कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कोई एक अलग एंट्री आ जाए। मतलब आप यहाँ देख रहे हैं, मैं आपको देखिए पूरा एक बार दिखा देता हूँ। मैं हेड ना लेके पूरा ही DF ले लेते हैं क्योंकि बहुत छोटी सी साइज़ है, बहुत छोटा सा डेटा है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से 60, 30, 45, मतलब अपर वैल्यू 60 है और 45, 30 इसके बीच में है। तो ये जो आपको देखने को मिल रही है एंट्री, ये बहुत ही अजीब एंट्री है, ठीक है। ये बहुत आउटलायर हो गया। तो आउटलायर वो होता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बिल्कुल अलग एंट्री आ जाए। तो ये भी क्या होता है स्टूडेंट्स के आपके आउटपुट पे फर्क डालेगा, क्योंकि बाइसिंग करेगा ये, ठीक है। तो इसलिए अपने को इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो किस तरीके से अपन नॉर्मलाइज कर सकते हैं इसको, तो बेसिकली जो ये डेटा है वो ये एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे डेट है, ड्यूरेशन है, पल्स है और कैलोरीज हैं, ठीक है। तो 450 अगर मैं बात करूँ तो 450 जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है, इसलिए भी हम ये देख सकते हैं कि ये गलत एंट्री हो सकती है। 45 की जगह 450 लिख दिया गया हो, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से अपन कर सकते हैं सही, तो इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको लग रहा है ये 450 की 45 की जगह 450 लिख दिया गया है, तो हम इसको जो है रेक्टिफाई कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा DF, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे लोकेशन जिसमें मेरे को चेंज करना है। अब इसके अंदर मैं दो पैरामीटर्स लिखूँगा, एक तो 7 और दूसरा मैं लिखूँगा ड्यूरेशन, ठीक है। तो 7 मुझे क्या बता रहा है कि ये 7th रो है, ठीक है, और ड्यूरेशन मुझे बता रहा है कि ड्यूरेशन वाले कॉलम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यही लिस्ट का फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स, और दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द लिस्ट। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि लिस्ट के अंदर हम किसी भी तरह का आइटम रख सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो
इंटीजर हो चाहे वो फ्लोट हो, तो यहाँ पे हमें उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। तो मेरे को क्या करना है कि बिल्कुल पिन पॉइंट करना है इस वैल्यू को, 450 जो मेरी वैल्यू है उसको पिन पॉइंट करना है। तो इसको पिन पॉइंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 तो मेरे को रो रखनी पड़ेगी, और कॉलम कौन सा रखना है, ड्यूरेशन का कॉलम रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन का कॉलम रख दिया है। अब मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना है। अब चेंज क्या करना है, इसमें एक वैल्यू असाइन करनी है, जो वैल्यू क्या कर देगी, उसको रिप्लेस कर देगी विद द न्यू वैल्यू। क्योंकि ये जो है ये एक ही वेरिएबल है, ये एक ही बॉक्स है, और इसके अंदर अभी वैल्यू क्या रखी हुई है, 450। तो अगर मैं इसको नई वैल्यू असाइन कर दूंगा तो क्या होगा कि जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो आउट हो जाएगी और इसमें नई वैल्यू कॉपी हो जाएगी। ठीक है, सो हमने ये कर दिया। नाउ लेट्स रन दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट रन हो चुका है और अब मैं यहाँ पे डीएफ करूँगा तो मैं देखता हूँ कि क्या एंट्री में चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए। तो मेरे को सीधे 7th रो पे चलना है, तो 7th रो पे चलते हैं अपन, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यस आई हैव मेड द करेक्शन। अब आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे 7th रो में 450 दिख रहा था और अब यहाँ पे 45 दिख रहा है। सो इन दिस वे इफ यू वांट टू क्लीन और इफ यू वांट टू रिमूव द रॉन्ग वैल्यू, तो दैट ऑल्सो यू कैन डू इट। ठीक है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज ज़्यादा होते तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें लोकेशन के अंदर आप इसमें और वैल्यूज़ को एंटर कर देते। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे, अगर मुझे इसको सिंगल स्टेटमेंट से ही करना होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो लेट सपोज करके देखते हैं। और यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, 7th और 8th रो में मुझे चेंज करना है। वो बोला ड्यूरेशन इज़ नॉट इन द इंडेक्स, फाइन। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट डालने पड़ेंगे तभी ये चलेगा, क्योंकि 2 ही चीज़ों की बात हो रही है। अगर मुझे नई रो में चेंज करना है तो मुझे दोबारा उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन डू द थिंग्स फाइन। सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड के हाउ टू क्लीन द रॉन्ग डेटा। ठीक है, रॉन्ग डेटा का मतलब ये नहीं है कि वो NaN है या फिर एम्प्टी सेल है। रॉन्ग डेटा का मतलब ये है कि मैंने गलत तरीके से वो डेटा लिखा गया है, तो उस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, नाउ रिप्लेसिंग वैल्यू, वन वे टू रिमूव, तो मैंने रिप्लेस कर दिया। अब रिप्लेस करने के लिए ये हमने आपको बता दिया मैंने कि किस तरीके से कर सकते हैं अपन। उसी तरीके से अपन रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूविंग इज द अनदर वे फॉर हैंडलिंग द रॉन्ग डेटा। ठीक है, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डिलीट रो वेयर ड्यूरेशन इज हायर देन 120। ठीक है, तो मैंने एक, अगर मान लीजिए मुझे ऐसी कई सारी एंट्रीज दिख रही हैं जो बहुत ही अलग तरीके से दिखी हुई हैं, तो मुझे क्या करना होगा, मान लीजिए मुझे स्केल डाउन करना है 120 तक, तो मैं वो भी चीज़ कर सकता हूँ। लेट सपोज मैंने लिख दिया 4x इन df डॉट इंडेक्स। ठीक है, तो मैंने df डॉट इंडेक्स लिया, तो अब वो df डॉट इंडेक्स कहाँ से चालू होगा, df डॉट loc, और वो चालू होगा x कॉमा ड्यूरेशन, और यहाँ पे मैंने कंडीशन दी हुई है ग्रेटर देन, अगर वो 120 होता है तो df को आप उसको क्या करना है, ड्रॉप कर देना है, x कॉमा इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। इसका बिल्कुल सिंपल सा है। अब मुझे क्या करना है कि मान लीजिए मेरे पास ऐसे डेटा है जो कि 120 से ज़्यादा है, तो मुझे उन सबको ड्रॉप करना है, उनको हटाना है, रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा कि एक फॉर लूप लगाऊंगा। तो बेसिकली क्या है, ये जो मेरा फर्स्ट पार्ट है लिस्ट का, जो पहला आइटम है वो मेरा इंडेक्स शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको इंडेक्स पे रख दूंगा। ये मैंने यहाँ पे काउंटर सेट कर दिया, काउंटर सेट कर दिया df डॉट इंडेक्स में। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, कंडीशन लगा दी है x कॉमा ड्यूरेशन। अगर वो 120 से ज़्यादा है तो मुझे क्या करना है, ड्रॉप कर देना है। और ड्रॉप कहाँ करना है, तो 120 से ज़्यादा है, और फिर मुझे उसमें क्या करना है, उनको ड्रॉप कर देना, ड्रॉप x इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो मुझे वो जो है ड्रॉप कर देना है उस आइटम को जो भी 120 से ज़्यादा ड्यूरेशन सीरीज़ के अंदर होंगे, और उस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स राइट दिस कमांड एंड नाउ लेट्स सी df। वैसे तो यहाँ पे 120 से ज़्यादा कोई भी रो नहीं है, तो देयर विल बी नो चेंज एट ऑल इन द डेटा सेट। ठीक है, वो सारी की सारी आपको रोज दिखेंगी खाली 22 को छोड़ के। ठीक है, लेकिन अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे 60 से ज़्यादा करता हूँ तो बहुत सारी उड़ जाएंगी। तो ठीक है,
तो मैंने आपको एक एग्जांपल समझाने के लिए बता दिया है। तो अगर मान लीजिए कोई एक रेंज से ज़्यादा की अपने को रोज को रिमूव करना है तो वी कैन डू इट बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, तो बाय यूजिंग लूप हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो मेन जो मुद्दे की इस बात ये है, जो समझने वाली बात है वो यही है कि जो इस लिस्ट के अंदर पहला आइटम है वो है इंडेक्स। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है 7th, तो ये जो यहाँ पे जो 7 लिखा था यह इंडेक्स है, इसलिए मैं इसको 2 इंडेक्स नहीं दे सकता, इसलिए इसके अंदर वो एरर आया था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मुझे इसको इस तरीके से करना है तो लेट एक इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है जो अभी मेरे दिमाग में आया उसका। तो मैं यहाँ पे फिर से ड्यूरेशन लिख देता हूँ और यहाँ पे एक लिख देता हूँ। नो लेट्स सी व्हाट इज इट। नो, नॉट ड्यूरेशन इज नॉट इन दैट, इट्स फाइन। तो आपको अलग अलग ही देना पड़ेगा उसमें। ठीक है, एनीवेज, सो अब हम बात करेंगे डुप्लीकेट्स की। अगर डुप्लीकेट्स आ जाते हैं तो हमें किस तरीके से उनको हैंडल करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डुप्लीकेट्स कौन कौन से हैं इसके अंदर। तो फिर से मैं यहाँ पे डीएफ करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे डीएफ किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 11th और 12th इन दोनों के अंदर सेम एंट्री देखने को मिल रही है, मतलब सेम डेट पे 2 एंट्रीज हो रही हैं। तो ये बेसिकली डुप्लीकेसी है। तो इस डुप्लीकेसी भी जो है हमारे ये तो क्या है, बहुत छोटा सा डेटा स्टूडेंट, जब वो मिलियंस ऑफ मिलियंस डेटा रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे पास, तब उसमें क्या होता है, ये डुप्लीकेसी भी ज़्यादा होती है। तो डुप्लीकेसी भी हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। तो डुप्लीकेटेड आइटम को भी हमें हटाना पड़ता है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं डुप्लीकेट मेथड को यूज़ करके हम डुप्लीकेट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि ये तो क्या है अभी 31 रोज का ही डेटा था तो हमने उसमें देख लिया, लेकिन अगर मान लीजिए आपको देखना है कि डुप्लीकेट हैं कि नहीं है मेरे, तो आप एक मेथड होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ नोन एज डुप्लीकेट। ठीक है, तो डुप्लीकेट मेथड विल शो यू कि कितने यहाँ पे मेरे पास जो रोज़ हैं वो डुप्लीकेटेड हैं, वो बता देगा इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब फॉल्स दिखा रहा है एक्सेप्ट 1। यहाँ पर सिर्फ 2, जो 12th रो है वो ही मेरी ट्रू है, मतलब जो 12th रो है उसी में डुप्लीकेसी है। आप देख भी सकते हैं, ऊपर हमने देखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो ड्रॉप डुप्लीकेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डी डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट। ठीक है, और मुझे ओरिजिनल डेटा में चेंज करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो जो मेरा ओरिजिनल डेटा है उसके अंदर से जो 12th रो होगी वो वहाँ से हट जाएगी, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 12th रो है वो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट जो थी रो वो हट गई है। और अगर मैं यहाँ पे दोबारा यहाँ पे देखना भी चाहूँगा डी एफ डॉट प्रिंट डी एफ डॉट डुप्लीकेट। ठीक है, सॉरी इट्स नॉट डुप्लीकेटेड, इट्स नॉट डुप्लीकेटेड, इट्स डुप्लीकेटेड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फॉल्स ही फॉल्स आपको दिखा है। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन रिमूव द डुप्लीकेट आइटम्स ऑल्सो। नाउ वी विल लुक अपॉन एंड विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, जो आपको मशीन लर्निंग के अंदर बहुत बार काम में आएगा और हर जगह काम में आएगा, विच इज़ नोन एज द कोरिलेशन।
कोरिलेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स? कोरिलेशन अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा को एंड द रिलेशन। तो बेसिकली इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, तो टू रैंडम वेरिएबल्स का मतलब ये है कि अगर मैं इस केस की बात करूं, अगर मैं इस डेटा फ्रेम की बात करूं, तो इस डेटा फ्रेम के अंदर मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं वो ड्यूरेशन है, डेट है, पल्स है, मैक्स पल्स है और कैलोरीज है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि डेटा फ्रेम के अंदर जो सीरीज होती हैं, जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, वो मेरे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। तो इनमें से अगर मान लो मैं इन चार वेरिएबल्स को तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मान लूँ। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था मशीन लर्निंग के अंदर दो चीज़ें होती हैं, वन इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अदर वन इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो ये मेरे चार वेरिएबल्स हैं ये तो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और ये जो कैलोरीज है वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कितने ड्यूरेशन में कितनी तारीख को कितनी पल्स आई, मैक्स पल्स आई, ये सारा अगर मैं डेटा लूँ तो मैं कैलोरी फाइंड आउट कर सकता हूँ, मेरी कैलोरी कितनी बर्न हुई है। तो मान लीजिए मेरे पास 31 का डेटा सेट है, तो मैं डेटा स्प्लिट कर दूंगा ट्रेनिंग सेट में और टेस्ट सेट के अंदर, और फिर इसको मैं मॉडल में फिट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं ट्रेन करूंगा मॉडल को, फिर टेस्ट करूंगा, और टेस्ट करने के बाद जब मैं नए डेटा के साथ इसको देखूंगा तो वो मुझे बता देगा कि हाँ इतने ड्यूरेशन पे, इतने ड्यूरेशन के लिए, इतने टाइम पर, अगर मैं, हाँ इसमें हो सकता है मैं डेट जो मेरा कॉलम है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्यूरेशन, पल्स और मैक्सिमम पल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर इतना ये तीन डेटा अगर इसमें डाल दूंगा तो वो मुझे प्रिडिक्शन करके बता देगा कि मैंने कितनी कैलोरी बर्न की है। So that is the one other thing of the machine learning part. So first of all, here we are going to discuss the correlation. So basically the correlation is shows the relationship between the two random variables. ठीक है, तो correlation किस तरीके से दिखाई जाती है? टू रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, तो कोरिलेशन का जो मेथड होता है वो तो CORR होता है, जो कि हम काम में लेंगे अभी, वो बात की बात है। लेकिन कोरिलेशन समझने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, विच इज़ नोन एज कोवेरियंस। ठीक है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा कोवेरियंस, कोरिलेशन। ठीक है, तो कोवेरियंस बेसिकली में जो अगर हम बात करें तो कोवेरियंस होता है मेरा COV ऑफ, अगर मैं दो ही वेरिएबल लेता हूँ, मान लीजिए दो रैंडम वेरिएबल लेता हूँ, तो कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कितने मेरे पास सैंपल्स हैं। ठीक है, अब ये क्या चीज़ होती है वो अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कोवेरियंस क्या होता है। तो लेट सपोज के स्टूडेंट्स मैं एक x लेता हूँ, ठीक है, और एक मैं x वेरिएबल लेता हूँ और एक मैं लेता हूँ y वेरिएबल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि x जो है, अब आप मान के चलिए कि जो अभी हम लोग सब लॉकडाउन में रह रहे हैं, घर पे आप लोग रह रहे होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे, आई नो दैट। तो लेट सपोज के x उसी से रिलेटेड हम एक डेटा बनाते हैं, एक डेटा सेट बनाते हैं। तो नाउ लेट सपोज के मैं x को तो मान लेता हूँ नंबर ऑफ आवर्स यू हैव स्पेंट ऑन नेटफ्लिक्स। ठीक है, आपने कितना नेटफ्लिक्स पे टाइम स्पेंड किया है, और y इज नंबर ऑफ आवर्स यू स्पेंट ऑन स्टडी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक तो x लिया है, दूसरा y लिया है। तो y मुझे बताएगा कितने नंबर ऑफ आवर्स मैंने टाइम स्पेंड किया है नेटफ्लिक्स पे, और कितना मैंने y मेरे को ये बताएगा कितना मैंने टाइम स्पेंड किया है स्टडी पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डेटा फ्रेम बनाता हूँ। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे x ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया y, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सपोज के मैं 4 आवर्स पर डे, 4 आवर्स में जो है मैं नेटफ्लिक्स पे निकालता हूँ और 1 घंटा सिर्फ पढ़ता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे दूसरा डेटा लिया, दूसरे दिन मैंने 3 घंटे स्पेंड किए, और स्टडी में मैंने 1.5 डेटा लिया। ठीक है, 1.5 आवर स्पेंड किया। उसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 स्पेंड किया, कोई अच्छी वेब सीरीज़ आ गई होगी तो मैंने देखा वहाँ पे, और यहाँ पर मैंने 0 आवर स्टडी पे स्पेंड किया। उसके बाद
वेब सीरीज़ कोई खास आ नहीं रही थी, तो मैंने फिर यहाँ पे 1 आवर ही स्पेंड किया, और स्टडी पे भी मैंने 1 आवर ही दिया, लेट सपोज 2 आवर्स दिए, मैं ज़्यादा पढ़ लिया उस दिन। उसके बाद मैंने दोबारा 2 घंटे स्पेंड किए उसमें नेटफ्लिक्स पे, और मैंने 1 आवर इसमें किया। सो इन दिस वे आई कैन क्रिएट द टू काइंड ऑफ डेटा, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो वेरिएंस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? को वेरिएंस या वेरिएंस अगर मैं कहूँ तो को तो बेसिकली होगा दो वेरिएबल्स के बीच का वेरिएंस, और वेरिएंस का मतलब है वेरी कितना कर रहा है। ठीक है, तो वेरी करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले मेरे को इसका मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, मीन ऑफ एक्स। ठीक है, वो कोई वैल्यू आएगी, लेट सपोज के वो आती है आपकी 4। ठीक है, और मीन ऑफ वाई जो है वो आता है आपका लेट सपोज 2.5। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इस एवरेज से ये कितना दूर है कितना पास है वो अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वो 4 से ज़्यादा है, मतलब इसमें दो चीज़ें होंगी, दो कंडीशंस होंगी इसमें। अगर मैं एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, एक्स या तो ज़्यादा होगा 4 से तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर एक्स लोअर होगा तो नेगेटिव कोवेरियंस होगा। ठीक है, ऐसे वाई जो होगा उसी तरीके से अगर y होता है, अगर ग्रेटर देन y अगर जो है ग्रेटर देन 2.5 होता है तो पॉजिटिव कोवेरियंस कहलाएगा, और अगर वो नेगेटिव में होता है तो नेगेटिव कोवेरियंस होगा। तो बेसिकली ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, कोवेरियंस चेक करते हैं। और कोरिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? कोरिलेशन इज नथिंग बट, यहाँ पे जो मैंने कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई लिखा है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि मीन ऑफ एक्स मतलब एक्स बार, मीन ऑफ एक्स माइनस एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये मेरा होगा एक डेटा का फॉर्मूला, और उसके बाद होगा यहाँ पे प्लस, एंड देन अगेन मीन ऑफ वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एन। तो मेरे पास नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। तो मैं पहले मीन ऑफ एक्स कैलकुलेट करूंगा, तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर फिर मैं मीन ऑफ वाई कैलकुलेट करूंगा विद रिस्पेक्ट ऑफ वाई, और उसको टोटल नंबर ऑफ सैंपल से मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। तो इस हिसाब से मेरा वेरिएंस आ जाएगा। अब अगर मेरे को कोरिलेशन देखना होगा तो यहाँ तो क्या है कि बाउंडेशन नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई भी वैल्यू कितनी भी हो सकती है। मान लीजिए आपके पास वैल्यू ज़्यादा आ गई, मान लीजिए मेरे पास बहुत अच्छी वेब सीरीज आई, मैंने 10 घंटे देखी वो, और मैं 1 घंटे ही पढ़ाई किया, तो ये क्या होगा, ये एवरेज से बहुत दूर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही चेक करना होता है कितना मैंने उसको पॉजिटिव, कितना मेरा वेरिएंस मतलब कितना वेरी कर रहा है वो एवरेज से। तो कितना वो वेरी करेगा, वो ज़्यादा वेरी कर रहा है तो पॉजिटिव साइड में जाएगा, अगर कम मतलब नीचे की साइड में माइनस साइन में है तो वो नेगेटिव वेरी करेगा। ठीक है, वो कितना वेरी कर रहा है वो हमारे को डेटा के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं बताता हूँ आपको, मशीन लर्निंग में डेटा या स्टैटिक्स की मैं बात करूँ, इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग के अंदर डेटा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो डेटा को एनालिसिस करना बहुत आना ज़रूरी है। अब अगर मैं बात करूं कोरिलेशन की, तो कोरिलेशन बेसिकली क्या होता है, कोरिलेशन अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब नेगेटिव होगा तो बहुत नेगेटिव वैल्यू भी जा सकती है, और अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव भी बहुत बड़ी वैल्यू जा सकती है। तो कोरिलेशन बेसिकली क्या करता है, उसको बाउंड कर देता है फ्रॉम -1 टू +1। ठीक है, तो कोरिलेशन का अगर मैं बात करूं तो कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम सब समझते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इससे क्या होगा, हम बाउंड हो जाएंगे। बाउंड कैसे हो जाएंगे, तो अब कोरिलेशन का जो बाउंड्री होगा वो -1 से लेके +1 तक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो
1 शो करेगा तो भी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। बेसिकली कोरिलेशन क्या होता है, डिग्री बताता है, स्ट्रेंथ बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में कितना रिलेशनशिप की कितनी स्ट्रेंथ है। तो ये होगा स्ट्रांगली रिलेटेड, ठीक है, बट विद द नेगेटिव कोरिलेशन, तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा इसमें। और अगर ये +1 होगा तो स्ट्रांगली स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा ये भी, और किस कैसे होगा, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर वो 0 है तो नो रिलेशन होगा। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको वेबसाइट पे देख सकते हैं, ऑन द इंटरनेट आप देख सकते हैं कोवेरियंस क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोरिलेशन और कोवेरियंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर मान लीजिए वो 0.9 है तो 0.9 इज क्लोज टू 1, तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कहलाएगा, ठीक है, बट इन द पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है। तो ये -1 से और 1 के बीच में वेरी करता है। अगर वो -0.9 होगा तो इट ऑल्सो बी अ वेरी गुड रिलेशनशिप, और वो किस तरीके से होगा, वो नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा, ठीक है। अगर वो 0.2 होता है तो वो 0 से क्लोज है तो रिलेशनशिप कम होगा, इट विल नॉट हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप, ठीक है। तो चाहे वो 0.7 हो प्लस में या माइनस में हो, दोनों के केस में वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ही कहलाएगा, ठीक है। और परफेक्ट कोरिलेशन कब होगा, जब वो 1 होगा, ठीक है। अगर वो 1 है तो परफेक्ट कोरिलेशन है, और बैड कोरिलेशन होगा वो जब कम से कम हो। तो इससे बेसिकली क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था मल्टी कोलिनियरिटी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर रिलेशनशिप कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर वो ज़्यादा होगा तो दैट मीन्स कि वो आपके आउटपुट पर ज़्यादा वो इफेक्ट करेगा। तो यही सिग्निफिकेंस होता है कोरिलेशन का। तो जितने भी इनपुट वेरिएबल्स हैं, जितने भी मेरे प्रेडिक्टर्स हैं, उनमें कम से कम जो होता है वो मेरा कोरिलेशन का कोरिलेशन रहना चाहिए। ज़्यादा अगर कोरिलेशन होगा उनमें तो वो उसी तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में तो रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो मेरे प्रिडिक्टर्स हैं और जो मेरे एस्टिमेटर्स हैं, जो मेरा टारगेट वेरिएबल है, उसमें तो रिलेशनशिप होना चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में नहीं होना चाहिए। अब किस तरीके से हमें पाइथन में देखना पड़ता है, कैसे देखते हैं हम, उसके लिए मैंने आपको बताया CORR एक मेथड होता है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे df.CORR करना है, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा दूंगा। नाउ लेट्स सी, इसमें ना मुझे कोई फॉर्मूला याद रखने की, ये मैंने आपको मैथमेटिक्स बताई थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मेरे को यहाँ पे कोरिलेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्यूरेशन से जो वो होगा रिलेशन होगा, बट ऑब्वियस है परफेक्ट ही रहने वाला है। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ भी 1 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ भी 1 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है। तो डायगनली जितनी भी चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं वो 1 ही आएंगी, क्योंकि वो स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। क्योंकि कैलोरी से कैलोरी का रिलेशन स्ट्रांगली होगा, पल्स से मैक्स पल्स का रिलेशन स्ट्रांगली होगा। तो ये बेसिकली एक मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है, 4x4 की। तो हमें उसको अब देखना है। अब मान लीजिए पल्स का और ड्यूरेशन का क्या है रिलेशन, तो पल्स का और ड्यूरेशन का 0.8 है, ये भी बहुत अच्छा रिलेशन है। मैक्स पल्स का और ड्यूरेशन का, मैक्स पल्स का और ड्यूरेशन का भी 0.2 है, ठीक है। ये कम रिलेशन है। 0.083 भी बहुत कम है, सॉरी ज़्यादा नहीं है, 0.083 है वो, तो बहुत कम है। कैलोरी का ड्यूरेशन का भी कम है, ठीक है। हमें यहाँ पे साइन पे ध्यान नहीं देना है, साइन चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोरिलेशन देखना है हमें, तो असली क्या है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन का पल्स से भी कम है। कैलोरी से देखते हैं, कैलोरी जो मेरा है वो स्ट्रांगली मेरा क्या कहते हैं टारगेट वेरिएबल है, तो ड्यूरेशन से क्या है उसका 0.3 है, कम है काफ़ी, ठीक है। पल्स का इससे काफ़ी है, मतलब पल्स जितनी ज़्यादा मेरी पल्स होगी उतनी ज़्यादा मेरी कैलोरी रहने वाली है। और अगर वो मैक्स पल्स अगर होगी, मैक्सिमम पल्स भी मेरा काफ़ी कोरिलेटेड, ज़्यादा कोरिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा कोरिलेटेड दिखा रहा है, तो वो 0.3 कोरिलेशन है। कोरिलेशन को हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोरिलेशन को देख सकते हैं। हम पता कर सकते हैं कि जो हमारे इनपुट वेरिएबल्स हैं और जो मेरे टारगेट वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है, और आपस में इनका क्या डिफरेंस है, ठीक है, आपस में इनका क्या रिलेशन है। मैक्स पल्स का पल्स के साथ क्या रिलेशन हम देख सकते हैं, 0.2 है, ठीक है। यहाँ पे 0.5 है, तो मेरे ख्याल से 0.5 से ज़्यादा किसी का रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ भी 0.5 दिखा रहा है, यहाँ भी 0.5 दिखा रहा है, इधर ये 0.33 है। कैलोरी का मैक्स पल्स से, कैलोरी का ड्यूरेशन से भी 0.35 है, तो मैक्सिमम जो है वो 0.5 ही है। ये जो 1 है तो खुद का आपस में रिलेशनशिप है, इसमें हमें ध्यान नहीं देना ज़्यादा।
ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन सी द कोरिलेशन मैट्रिक्स। पूरी की पूरी कोरिलेशन मैट्रिक्स भी देखी जा सकती है, वो एसएनएस से एक प्लॉट होता है, उसको हम देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लॉटिंग देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यही खासियत है पाइथन की। आप इसके अंदर प्लॉटिंग भी देख सकते हैं। प्लॉटिंग इतनी शानदार ये करके दिखाता है कि आपको मज़ा आ जाएगा देख के इसकी प्लॉटिंग। और प्लॉटिंग के लिए हम एक और पाइथन की लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे जिसका नाम होता है मैट प्लॉट लिब। तो इसको सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट। ठीक है, SPLT। ठीक है, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे df डॉट प्लॉट। तो प्लॉट एक मेथड होता है जो कि मैट प्लॉट लिब में होता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा plt डॉट शो। is showing some kind of error, just to wait। एनीवेज मैं फिर से एक बार इसको कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ इसको। इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे df डॉट प्लॉट और उसके बाद plt डॉट शो करता हूँ।
या सो इट इज़ नॉट शोइंग बिकॉज यहाँ पे कुछ DF को मैंने जो रीड किया था उसकी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी. तो अगेन आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस. सो हियर वी कैन सी द ग्राफ. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ग्राफ देख सकता हूँ. ये ग्राफ जो है आपको बता रहा है कि जो यहाँ पे ब्लू लाइन है वो ड्यूरेशन की लाइन है, ऑरेंज लाइन पल्स की है, मैक्स पल्स जो है ग्रीन लाइन है और कैलोरीज जो है वो मेरी रेड लाइन है. सो इन दिस वे वी कैन शो द प्लॉट. और जो ये मेरा एक्स एक्सिस है वो 500 तक है, सॉरी वाई एक्सिस जो 500 तक है और एक्स एक्सिस मेरा 300 तक का है. तो इन दिस वे वी कैन बाय यूजिंग मैट प्लॉट लिब. ठीक है, जो मैट प्लॉट लिब जो लाइब्रेरी है उसको मैं यूज़ करके और इस तरीके की फाइल को भी क्रिएट कर सकता हूँ और ग्राफ को मैं क्रिएट करके उसको देख सकता हूँ. ठीक है, सो बाय दिस आई एंड ऑफ दिस लैब सेशन. ठीक है, काफ़ी लंबा चला एंड सॉरी फॉर द डिले. मेरे को थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया, बट यू कैन सी दैट और यू कैन नाउ डाउनलोड द डेटा सेट. ठीक है, देयर आर वेरियस वेबसाइट्स. मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ बार बार बिकॉज इंटेंशनली मैं नहीं बता रहा हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप खुद लोग देखें कि कौन कौन सी डेटा सेट्स की वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर या स्टैटिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है डेटा सेट की. तो डेटा सेट होना बहुत ज़रूरी है अपने पास. एंड इफ़ यू आर वर्किंग ऑन IoT प्लेटफॉर्म, अगर आप IoT पे कर रहे हैं तो सेंसर से अगर आप डेटा ले रहे हैं तो उसके लिए क्या आपको बैठना पड़ेगा बहुत. और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये 30-35 डेटा से कुछ नहीं होता. एटलीस्ट नहीं तो आपको 1 से 2 लाख रिकॉर्ड्स आपको चाहिए होते हैं फॉर प्रिडिक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, मतलब आपको कम से कम नहीं तो 2 साल या 3 साल या 5 साल का डेटा चाहिए होता है. तो अगर मान लीजिए आप IoT एप्लीकेशन पे अगर आप काम कर रहे हैं, खुद का डेटा सेट बना रहे हैं, तो आपको अभी से आज से अगर आप चालू करेंगे तो 5 साल लगेंगे आपको डेटा सेट क्रिएट करने में अपना. ठीक है, तो इस तरीके से डेटा सेट क्रिएट किया जाता है और कई वेबसाइट्स पे बने बनाए डेटा सेट दिए हुए हैं. आप चाहें तो उसको डाउनलोड करें. और अभी आप लोगों ने पांडास पढ़ लिया है, काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं पांडास से रिलेटेड. तो आप मिसिंग वैल्यूज़ किस तरीके से सही करते हैं, रॉन्ग वैल्यूज़ किस तरीके से देते हैं, किस तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं डेटा फ्रेम का, वो आप चीज़ कर सकते हैं. ठीक है, मैट प्लॉट लिब का मैंने आपको एक छोटा सा वो बता दिया, बट मैट प्लॉट लिब एक अलग से पूरा का पूरी लाइब्रेरी है. हम काफ़ी तरीके से स्कैटर प्लॉट और इसके अंदर बार प्लॉट जो है वो कर सकते हैं. ठीक है, तो वो आप देख लें. इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सिलेबस. तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से बार प्लॉट किया जाता है, किस तरीके से स्कैटर प्लॉट किया जाता है. इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग. कोडिंग है, सिर्फ आपको कोडिंग ही लिखनी है. सो बाय दिस आई एंड अप दिस लेक्चर. फाइन, सो कीप लर्निंग. थैंक यू.